Hare Krishna. I welcome all the panelists. So the first question related to emotional wellness. What are the healthy ways devotees can manage emotion like anger, jealousy or sadness without letting them block our service attitude? Hare Krishna, pronounced to all dear devotees. I took up the mic because I thought I'm the right person, because I'm a very, very angry person. Before I used to be. Now, at least I should not say that, because under the instructions and under the guidance of my Shiksha Gurus, I presume I have overcome my anger to a great level. How many among these assembled devotees do not get angry? How many do not get angry? So we all know anger, rage, greed, these are all negative emotions, but they are quite natural. Is it not? See, just as fire can be used to lit and also used to be cooking. Also fire can also burn things. So these negative emotions can be used and purified when used properly and rightly. So Krishna says in Srimad Bhagavad Gita that Trividam Naragaseda. These are three ways one is led to hell. What are the three things? These three negative emotions. The anger, lust and greed. So this is quite natural also. So in Krishna consciousness, we are taught how we can also control these negative emotions. Practical ways are there. And when these practical ways are here, if you are sincerely and in a disciplined manner following it, we can go through this. Why we have to go? Because as I said, this will lead to hell. And also we are all practicing so that one day we become pure devotees. So in between we should not do any aparata. And these aparatas comes when all these negative emotions comes. And Shri Goswami has says to Parikshit Maharaj in Srimad Bhagavatam that Kaliyuga people are Mandaha Sumanta Matayo Manda Bhagyahi Ubadrita. We are foolish, we are lazy, and we are always disturbed in our mind. So the right knowledge will guide us to how to control these negative emotions. And this right knowledge is given by Lord Sri Krishna in Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, which we must try to learn and hear from those realized souls, devotees, and hence chanting of Hare Krishna Mahamantra, which is the Kali Yuga Dharma. Again in Srimad Bhagavatam, Parikshit Maharaj is hearing from Sukdev Goswami that Kale Dosha Nide Rajan Asti Ego Mahatmuna Kirtanadeva Krishnasya Mukta Sangha Param Prache. The chanting of the holy name of Hare Krishna Mahamantra will give all this purity by which we will get the devotion. Mataji is also saying about forgiving. All these higher characters comes up to a devotee by constantly chanting Hare Krishna Mahamantra, by constantly hearing Srimad Bhagavatam, by constantly associating with devotees, by doing constantly devotional services. Mataji, did you answer to the question? Thank you so much, Mataji. So Mataji said that, yeah, to control our emotions are quite natural, it just comes out, right? So to control it, we have to take the help of the chanting of the holy name. So chanting of the holy names, yeah, it is true. But then it is not by one day. You have to keep continuously, we have to do it. So here comes association. So my next question to Prabhuji is that, how does association with devotee heal mentally as well as our emotions? Thank you, Mata, for this question.
सचिव शर्माता फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। मैं कोशिश करूँगा हिंदी में बताने का। तो डिवोटी का संघ जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है एक लाइफ में, तो ये माता का सवाल है। तो हम ये देख सकते हैं कि डिवोटी बनने से पहले हमने बहुत सारा जो हमारा जो इंटरेस्ट रहता था, तो वो हम क्या करते हैं, ज़्यादा करके आकर्षित हो जाते हैं और वो करना शुरू करते हैं। यहाँ पे जो मेंटल हिलनेस है, इमोशनली आप हमको मेंटल हिलनेस जो करना है उसके लिए बेसिकली संग चाहिए, क्योंकि संग अच्छा रहेगा तो हम अपनी जो भक्ति है उसको हम अच्छी तरह से कर सकते हैं और हमारा जो क्या बोलते हैं मेंटल मनोबल बोलते हैं उसको भी हम सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमको हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि हम ड्यूटी के संग हो और हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जो हमारा जो मेंटर हो, जो हमारा जो शिक्षा गुरु हो, वो शास्त्र को फॉलो करने वाला हो और हमको कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो एसोसिएशन हो वो ड्यूटी का सर्कल में हो और हमें ये भी कोशिश करना चाहिए कि जितने भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो किसी के गाइडेंस में करें। तो गाइडेंस में करने से हमारे जो भक्ति जो है वो बढ़ेगी। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो धन्यवाद बोल जी। तो अभी हम लोग इस कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं, तो अभी हमारे पास केवल एक दो प्रश्न ही है। तो मेरा अगला प्रश्न है, श्रील प्रभुपाद ने हमें अपनी पुस्तकों को जीवन और आत्मा के रूप में दी है। शास्त्रों का नियमित पठन और मनन हमें आध्यात्मिक ड्राइनेस से कैसे बचाता है? हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जातस्य कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बच्चा ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और ये हमारे जीवन बहुत ही गंभीर प्रश्न है। जैसे कि हम हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम भौतिक जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो हम साथ साथ में हमारी जो आध्यात्मिक जिम्मेदारियों के प्रति ना हमें कभी हम निरस हो जाते हैं, हमारा उत्साह चला जाता है, हमारा भगवान के साथ जो जुड़ाव है ना वो घट जाता है, हमें भक्तों की संगति में भी आनंद नहीं मिलता है, ना हमें जप करने में हमारा मन लगता है। मेरे साथ तो अक्सर ये होता है, क्या आपके साथ ऐसा होता है क्या? तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? उस समय हमें क्या ज़रूरत है? हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है हमारे जीवन में। अगर हम सचमुच भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें ऐसे एक भक्त की संगति करनी चाहिए जो हर सदा हर वक्त हमारे साथ रहे। तो ऐसा कौन है हमारे जीवन में? क्या कोई बता सकता है? हरि बोल। तो वह है हमारे प्रिय श्रील प्रभुपाद जी, जो हर वक्त हर पल हमारे साथ है। कैसे हमारे साथ है? वो अपनी पुस्तकों के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रील प्रभुपाद ने ये हमें जो अमूल्य रत्न दिया है, उनकी पुस्तकों के द्वारा हमें ये जो शास्त्र दिए हैं, वो हमारे जीवन भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें जब हम पढ़ते हैं तो हमारी भक्ति जीवन में जो श्रद्धा है बहुत गहरी होती है। वो हमें दर्शन को स्पष्ट करती है। और जैसे कि हम बहुत भावुकता से जीवन जीते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हम माया के बहाव में चले जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद की पुस्तकें से हमें माया से रक्षा मिलती है। जैसे हम समझते हैं एक छोटा सा पौधा है, अगर उसको हमें मजबूत बनाना है, उसको फलदायी बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसमें पानी डालना पड़ेगा, उसका पोषण करना पड़ेगा। वैसे ही हमारे जीवन में हमारी भक्ति को और हमारी चेतना को अगर हमें पोषण देना है तो नियमित रूप से हमें श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी होगी। श्रील प्रभुपाद ने ये जो पुस्तकें लिखी है ना, ऐसा अपने ज्ञान और अपने बल के, अपने बुद्धि के बल से नहीं लिखा है। उन्होंने उन सारी की जो भगवान की लीला है उनका साक्षात्कार किया है। और प्रभुपाद ने स्वयं बताया है कि उनके गुरु महाराज और प्रभु भगवान ने उनको प्रत्यक्ष रूप से उनको मदद की है, उनको कृपा दी है। और
प्रभुपाद की पुस्तकों में अगर हम देखेंगे ना, शुरुआत से लेके अंत तक, अगर चाहे कोई भी तात्पर्य पढ़ो, चाहे वो भक्त हो या कोई भी जीव, कोई अभक्त भी अगर पढ़ता है तो उसको वो भगवान से जोड़ देता है। तो एक शब्द भी उसने पढ़ लिया ना, तो तुरंत भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, क्योंकि उसने भक्ति का रहस्य ही बताया हुआ है। और प्रभुपाद की इन टिप्पणियों में उन्होंने जो रस डाला है, उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को सारा रस निचोड़ कर हमें वो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, जो पूरा जो परिपक्व फल का जो रस है ना, उसको भी छान कर हमें दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमारी शरीर को हम भोजन से पोषण मिलता है, तो वैसे ही हमें बुद्धि को सशक्त और तेज बनाने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है। और ये ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? ये तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से ही हमें मिलेगा। तो हमारे और ये हमारे जीवन के लिए ना एक औषधि का काम करती है। तो हमें नियमित रूप से प्रभुपाद की संगति करनी चाहिए। मतलब उनकी जब हम बुक पढ़ेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से हम प्रभुपाद की संगति करते हैं, और जब हम प्रत्यक्ष रूप से शुद्ध भक्त के संग में आते हैं तो हम भी धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं। और जैसे हमारा मन शुद्ध होता है तो हमारा मन भगवान में स्थिर होता है, और हम भगवान को भी ध्यान से भक्ति में जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, भगवान को केंद्रित करते हुए। तो और श्रील प्रभुपाद की ये जो बुक है ना, हमारे लिए प्रभुपाद के जैसे जब उनका अंतिम समय था तो उनके शिष्यों ने उनसे पूछा था कि प्रभुपाद, जब आप हमारे बीच में नहीं रहोगे तो हमें भक्ति जीवन में ये मार्गदर्शन और प्रेरणा कौन देगा? तो प्रभुपाद ने बोला, ऐसा संभव ही नहीं है कि मैं आपके बीच में नहीं रहूँगा। मैं हर सदा मेरे पुस्तकों के माध्यम से आपके साथ जुड़ा रहूँगा, और मेरे पुस्तकों से आपको हर सदा मार्गदर्शन मिलेगा। तो ये जो प्रभुपाद की बुक है ना, वो हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे जीवन की नेसेसिटी है। और जैसे कि प्रभुपाद ने बताया है ना, सादा जीवन उच्च, सादा जीवन तो शायद हम लोग अपने जीवन में जीना सीख ले, लेकिन जो उच्च विचार है ना, वो उच्च विचार ऐसे ही नहीं आता है, वो हमें शास्त्रों का अध्ययन करने से ही आता है। तो हमें अवश्य ही नियमित रूप से श्रील प्रभुपाद की बुक को पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद ने यहाँ तक कहा है कि देखिए, अगर सिर्फ आप क्या करें, केवल मेरी पुस्तकें पढ़ें और मेरी पुस्तकों का जितना हो सके उतना वितरण करें और हरि नाम का जप करें, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो क्या हमें प्रभुपाद के इन वचनों पर श्रद्धा नहीं होनी चाहिए? अवश्य होनी चाहिए। और नियमित रूप से हमें प्रभुपाद का शरण लेना चाहिए, उनकी संगति लेनी चाहिए, जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ हर सदा हर पल रहते हैं। जय श्री प्रभुपाद। तो हमारा अगला प्रश्न है कि अपराधों से बचने और यदि अपराध हो भी जाए तो उसे सुधारने के लिए हम कौन से व्यवहारिक कदम उठा सकते हैं? ओके, what practical step can we take to avoid offenses and if committed to correct ourselves? हरे कृष्णा, ये भी बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे भक्ति जीवन के लिए। हमें हमारे भक्ति जीवन में ना बहुत ही सावधान और संवेदनशील रहना चाहिए। खास करके जब हम भक्तों के साथ संगति करते हैं ना, भक्तों के साथ संगति करना मानो अग्नि के साथ व्यवहार करने के समान है। जैसे अग्नि हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है, लेकिन अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो वो हमारे हाथ को भी जला सकते हैं। वैसे ही भक्तों का संग हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण है, और भक्तों के संग के बिना तो हम हमारे भक्ति जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हमें इन अपराधों से हम कैसे बचें, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें वैष्णव शिष्टाचार की शिक्षा दी है, तो उसको हमें हर सदा याद रखना चाहिए कि जैसे हम कभी भी कोई वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करनी तो नहीं चाहिए, बल्कि निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। अगर जहाँ कहीं इसकी अगर निंदा होती है तो हो सके तो उसको सही करने का हमें प्रयास करना चाहिए, नहीं तो तुरंत वहाँ से हट जाना चाहिए। और जैसे कि हमें हर एक वैष्णव का सम्मान करना चाहिए। अभी सम्मान करना मतलब खाली कहने के लिए नहीं हम सम्मान करते हैं, हम कहने के लिए कहते हैं ना हम दासानुदास हैं, तो ऐसा नहीं है, वो हमारे व्यवहार में भी दिखना चाहिए। और जैसे हमें हर एक वरिष्ठ वैष्णव का ही सम्मान करना ऐसा जरूरी नहीं, हमें हर एक जीव का सम्मान करना चाहिए, और हर एक
जिनका जब हम सम्मान करना सीखेंगे ना, तो हमारे में ये अपराध की प्रवृत्ति स्वतः ही नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और जैसे कभी भी हमें कोई भी वैष्णव को जज नहीं करना चाहिए। जब कभी हम वैष्णव के बारे में कुछ सोचते हैं या कुछ देखते हैं, तो ये सब सही नहीं होता, ये सत्य नहीं है। हमें वैष्णवों को देख के या सोच के नहीं, बल्कि उनको सुन के समझना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने चैतन्य भागवत में कहा है, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विघ्ने न पूजाए। तो वैष्णव की क्रिया को ना बड़े बड़े पंडित भी नहीं समझ पाए, तो हम कौन होते हैं उनको गलत ठहराने वाले या उनको जज करने वाले। और हमें हर सदा वैष्णव के गुण को देखना चाहिए, ना कि उनके अवगुण को, उनके दोष को नहीं देखना चाहिए, उनके गुणों को देखना चाहिए। जब उनके गुणों को हम देखेंगे, तो उनके गुणों का हम गुणगान करेंगे, तो हमारे में जो दोष देखने की प्रवृत्ति है ना, वो भी समाप्त हो जाती है। और हर सदा हमें ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम जब अपना वाणी का प्रयोग करते हैं ना, तो कोई भी ऐसे कठोर शब्द ना बोले ताकि वैष्णवों के हृदय को ठेस पहुंचे। तो गोस्वामी ने बताया है ना दिशामृत में कि वाचो वेगम हंसावे, तो हमारी वाणी पर हमें संयम रखना चाहिए। तो इस तरह से हम ये बहुत सारी बातों पर अगर हम व्यवहारिक रूप से अगर ध्यान करेंगे, तो हम वैष्णव अपराध करने से अवश्य बचेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने, जैसे कि मेरे से कुछ वैष्णव अपराध हो गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे? तो शास्त्र में उसके एक ही उपाय, शास्त्र में से 3 उपाय बताए गए हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं कहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी वैष्णव के चरण कमलों में अगर अपराध करता है, तो उससे मुक्त होने का केवल एक ही मात्र उपाय है, वो है कि उस भक्त के चरणों में जाकर क्षमा याचना करनी चाहिए, विनीत भाव से, थोड़ा दबी सुनीचेगा। तो हमें बहुत ईमानदारी से और बहुत विनीत भाव से क्षमा मांगनी चाहिए। दूसरा है कि हमें भगवान के पवित्र नाम की शरण लेना चाहिए। उसके बदले और कोई हमारे पास रास्ता ही नहीं, कोई मार्ग ही नहीं है। जब हम भगवान के पवित्र नाम की शरण लेते हैं, तब हम भगवान से शुद्ध हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मैंने आपके प्रिय भक्त के प्रति अपराध किया है, तो प्लीज कृपा करके मुझे क्षमा करें। क्योंकि भगवान के चरणों में किया गया अपराध शायद भगवान माफ कर दे, लेकिन भगवान के भक्त के प्रति किया हुआ अपराध भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो भगवान के हाथ में भी नहीं है। जैसे हम सबको पता है दुर्वासा मुनि और महाराज अमरीश की प्रसंग के बारे में। और तीसरा जो है कि हमें अपने आप को सेवा से जोड़ देना चाहिए। कि कहीं जहाँ कहीं मिले, चाहे मंदिर में हो, चाहे कोई भक्त के घर में हो, चाहे प्रवचन केंद्र में हो, कहीं पे भी अगर हमें सेवा का मौका मिले, तो हमें अवश्य अपने आप को सेवा में जोड़ देना चाहिए। और जहाँ भी संकीर्तन हो रहा है, भगवान का नाम का उच्चारण एक साथ हो रहा है, ऐसा महायज्ञ हो रहा है नाम का, वहाँ अगर हम जाके बहुत शांत मन से भगवान के नाम का उच्चारण सुनेंगे, तो तुरंत ही हमारा जो हृदय है वो कलुष से मुक्त हो जाता है। Chanting the holy name, it affects our heart. So my next question is to Dinapamla Prabhu. How could you share your chanting the names directly fills the heart and brings deep inner peace? Can you just throw some light on it? Hare Krishna. The holy name is no different from the Lord Himself. So one who is chanting the holy name is directly engaging with the Supreme Lord. The devotees who are chanting, who have expressed that when they are undergoing mental stress, they sit in a place and chant the holy name for some time. Then they get relief from the mental stress. This is because while we are chanting, we are directly engaging with the Supreme Lord, and it cleanses our heart. We know that all the mysteries we face are because we are forgetting our relation with Krishna. Once we chant the holy name, we establish the closer relation, and it helps us to overcome the difficulties in life. So, by chanting, we are directly treating our disease. So it is much better than any other method of stress relief. So chanting is recommended. That's why Srila Prabhupada said, chant and be happy. So one should follow his instructions. Thank you so much.
Yes, Prabhuji. Prabhupada said that chant and be happy, and we all are running after so many things like how to keep ourselves happy. So this is a very good formula that Prabhuji has given. Chanting is the only way, and chant and be happy. Can I take one last question for Prabhuji? Like Prabhuji is known for seva. Wherever there is seva, Prabhuji is always there. So sometimes devotees take on seva, but they feel that they become overburdened. They feel it. So how can we transform seva into a source of joy rather than duty? Hare Krishna. Seva is rendering loving devotional service to God. When we are engaging in seva, we should do it with love and devotion. If there is no love and devotion, then it will be a pious activity only and we will not get the required result. Devotees consider seva as an oxygen in their life. There are different types of sevas available, like preaching, book distribution, deity worship, and preparing prasada. All these sevas, if one perform with love and devotion, it will purify us. Maybe in the beginning we may not get the love. But over a time period, if we perform services under the guidance of a bona fide spiritual master or his representative, over a period of time, by the mercy of the Lord, we will feel happiness and love in executing service. So one should always be engaged with rendering loving devotional service to the Lord as per the instruction of the spiritual master and his representative. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हम सभी भक्तों के लिए हिज ग्रेस राधा कृष्ण प्रभु जी, हिज ग्रेस दीन पावन प्रभु जी, हर ग्रेस लक्ष्मी माता जी, दिव्य श्री माता जी, हर ग्रेस दिव्य श्री माता जी और हर ग्रेस शिशुविका माता जी के लिए हम सब इधर हम दोनों की तरफ से और हम सब की तरफ से 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र से प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो प्रश्न तो बहुत था, लेकिन वही है, समय का पाबंदी बस हो नहीं पा रहा है बाकी। तो आप सबसे निमंत्रण आग्रह करते हैं कि आप सबके पास जो भी प्रश्न है आप लोग नोट करके रखिए और अपने अपने भक्ति विषय क्लास में जो भी प्रश्न है रख सकते हैं और हम प्रभु जी माता जी से उसका आंसर लेके आप तक पहुंचाएंगे। या फिर आपका अगर बहुत प्रश्न है और अधिक जानने का इच्छा है तो हम सारे गेस्ट को जो है हमारा भक्ति विषय क्लास में इन्वाइट कर सकते हैं और वहाँ पे हम लोग पूरा जो है उसका आगे पे जो है जानने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा।